અમારું તો રોટેટિંગ હતું અમે આજે 10 દિવસ નાખશું તમારા સ્ટુડન્ટ 103 માં it is 12th standard 2 અને 4 માં it is 11th standard 5 માં બધા બધા એ પણ એ ફિક્સ નથી મારા સર શું કાંઈ ફિક્સ નથી રોટેટિંગ હશે probably I'll be in either 2 or 3 માંથી मनोज सर नो फिक्स नहीं दिया one of the faculty will be one of the person उनका तो फैमिली आ रहा है पूरा उनकी वाइफ किड्स सब आए चलो चश्मा एक कल्याणी आ गया सर को ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होता ऐसा पूरा खाना लोड अभी बच्चे लोग अरे सर चीज में कहाँ से सर बच्चे है ना बैग उठा आगे आगे चलो गाइस BRS चलो होमवर्क आया आपको 3 सम होमवर्क थे मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BRS व्हाट इज द कांसेप्ट फुल फॉर्म नहीं पूछा बेटा मीनिंग पूछा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता क्यों है देयर आर 2 बुक्स कैश बुक एंड पासबुक Cash book has got 2 columns, cash column and bank. So, the entries which we enter in the bank column of cash book, entries which we enter in the bank column of cash book are also recorded by the bank in another book that is called as passbook. But the only difference being, whatever transactions we record on the debit side of cash book are entered by the bank on the credit side of passbook. And whatever entries we put on the credit side of cash book are entered by the bank on the debit side of passbook. ऐसा क्यों? हम डेबिट करते हैं बैंक क्रेडिट करता है हम क्रेडिट करते हैं बैंक डेबिट करता है ऐसा point of view is different. We think from our point of view, bank thinks from their point of view. It is, what is cash book? Cash book is bank's account in our books. Cash book is bank's account in our books, right? And what is passbook? Our account, customer's account in the books of the bank, right? Customer's account in the books of the bank. That's why point of view is different. हमारे लिए बैंक एसेट है तो बैंक के लिए हम लायबिलिटी, हमारे लिए बैंक डेटर है तो बैंक के लिए हम क्रेडिट. That's why the entries are recorded on the opposite sides, but that doesn't make a difference between amount received and amount paid. ऐसा नहीं कि हमें पैसा मिला तो बैंक से गया या हमारे पास से गया तो बैंक में आया. It's not like that. We receive money, bank receives money. We pay money, bank pays money. Only the point of view is different. That's why the books are different. That's why the sides are different. Is that clear? So ideally, we saw that any entry that appears on the debit of cash book, if it is there on the credit of passbook and vice versa. So ideally, balance as per both the books should be same or different. At the end of the month, it should be same. The nature would be different. Cash book ka debit would become passbook ka credit and vice versa. The nature would be different. But ideally, the balance should be same. Amount should be same. Unfortunately, sometimes this balance is different. When it is different, we saw some examples, if you remember. हाँ, end of the month आप चेक डिपॉजिट कर दिए हो और कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, बट पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. पासबुक में कब रिफ्लेक्ट होगा? नेक्स्ट मंथ. So check takes time clearing, a couple of days, 3 days, 4 days, right? What happens when you
issue the check at the end of the month. You record it in cash book, but would the entry appear in the passbook in the same month? No, that also happens somewhere down the next month, because सामने वाला पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना आलसी है, कब डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट होने के बाद भी 2-3 दिन बाद क्लियर हो रहा है. Is that right? So आगे पीछे हो जाता है. These are called as timing differences. So one of the reason of difference between balance as per cash book and passbook is timing difference. और रीजन क्या हो सकता है? फ्रॉड्स एंड एरर्स. मैंने फ्रॉड का एक एग्जांपल दिया था, याद है आपको? कैशियर को पैसा दिया आपने जमा करने के लिए, बैंक में आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में दिखी ही नहीं, क्योंकि वो चला गया गोवा, उड़ा ले क्या कैश. तो आपको ये भी पता चल जाता है जब आप BRS रेडी करते हो तो बैलेंस अलग है, उसके रीजन लिख देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड है कि नहीं, एरर्स है कि नहीं. सो व्हाट इज BRS, व्हाट इज बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट? दोनों बुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट समटाइम्स द बैलेंस इज डिफरेंट. तो यू नोट डाउन द रीजंस ऑफ डिफरेंस. That list of reason of difference is called bank record statement. Is that clear? क्या होता है BRS? क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? It is a list of what? Reasons of differences. It is a list of reasons of differences. डिफरेंस के रीजंस की लिस्ट. किसके डिफरेंस के रीजंस की लिस्ट? बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक के डिफरेंस की लिस्ट. इसको कहा जाता है BRS. Is it a journal? Is it a ledger? Are we supposed to make any changes in cash book? Are we supposed to make any changes in passbook? Are we supposed to rectify any errors, any mistakes? Nothing. We are not touching either of the books. We are just looking at the difference of balance and we are just trying to see the reasons. That's it. Got that? Based on that, we did a few sums on arrows basis. Okay, 3 sum homework आया आपको. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. Tell you the sum just a second. फिर से पासवर्ड डाल के खराब मत करिए. नहीं अरे दे भाई, अरे अबे मत का यार, मस्त प्लीज. सुबह यार एक So, what was the logic of the topic? This is your cash book. Cash book का debit is receipt and credit is payment, right? And passbook का debit is payment, credit is receipt, correct? So suppose मेरे को एक चेक आया है. Let's say I got a check from Bhavya. So what entry will I pass? Bank to Bhavya. Let's say I got a check on 1st of December worth 10,000. ये एंट्री पासबुक में कब अपीयर होगी? सेम डे की कुछ दिनों बाद. Let's say on 4th of December. 2-3 दिन लग गए क्लियर होने में. By Bhavya. Is that right? 10,000. मैंने एक चेक इश्यू किया है. Let's say मनंत को. I issued a check to Manant 4,000. Let's say on 4th of December. I'll write here by Manant. बराबर है 4,000. Will the entry appear in the passbook on the same day? Yes or no? It might appear after 4-5 days. It goes to the bank, it deposits. It might get cleared on say 9th. So entries तो आ रही है दोनों बुक में, लेकिन सेम डे पे नहीं आ रही, राइट? आगे पीछे आ रही. So there is bound to be some difference in the dates for that matter. अभी सपोज ईयर एंडिंग के वक्त मेरे को एक चेक मिला है, लेट्स से कृषि से. I got a check of 15,000 from Krishi. So what entry will I pass to Krishi? 15,000. This is on 29th of December
और मैं क्या बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने बैंक टू कृषि एंट्री कर दी, क्या ये एंट्री सेम मंथ में क्लियर होगा? पासबुक में एंट्री आएगा सेम मंथ में, चेक तो क्लियर होने से रहा, तो टाइम लग जाएगा, बराबर है? तो बैलेंस सेम है कि अलग है? अलग है। यहाँ पे कितना है? 25 माइनस 4 21 है, और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो ये 25 ये 21 है और ये 6 है। ये अलग क्यों है? इसके रीजंस की लिस्ट को कहा जाता है बीआरएस। तो बीआरएस में हम जो एरोस करते थे ना, वो कुछ ऐसे करते थे, आप लिखते थे ना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेट्स से कैश बुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक का है 21। अब प्रैक्टिकली आपका पासबुक बैलेंस सामने होता है, when you are doing articles and all you'll come to know, दोनों बुक सामने होते हैं, then you tally them. बट यहां पर आपके पास ये बैलेंस सामने नहीं है। For the test without a ball pen. Heights man. अरे सर मैं पाउच भूल गया, पाउच ही लेके जाए। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 21,000. Can you see that? प्रैक्टिकली आपके पास दूसरा बैलेंस होता है 6,000, बट थियोरी में आपको नहीं देते। थियोरी में आपको एक बैलेंस देते, बोलते दूसरा वाला ढूंढो। तो हम क्या करते हैं, ये 21,000 है, वी आर मूविंग फ्रॉम सीबी टू पीबी विद अ नॉर्मल बैलेंस। ये सीबी, ये पीबी। कैश बुक में चेक आ चुका है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है। पासबुक में अभी तक पैसा नहीं आया, तो कंपैरेटिव बैलेंस ऑफ पासबुक इज लेसर, सो सीबी गोज अप। याद आया? ये पैसा आया, पीबी रिमेन्स फ्लैट, एरो मूव्स डाउनवर्ड, सो यू सबट्रैक्ट। सो व्हाट आंसर यू गेट इज 6,000. व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ पासबुक? 6,000. ये आपको नहीं दिया होगा थियरी के, बट अगर प्रैक्टिकली कर रहे हो तो ये बैलेंस आपके सामने है, तो आप मैच कर सकते हैं। यू हैव दिस आंसर, यू हैव फाउंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। ये सब प्लस माइनस करने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ जोल है, देन यू हैव टू सर्च इट अगेन, या कुछ मिस्टेक्स है, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने चेक इश्यू किया है, लेट्स से आई हैव इश्यूड अ चेक टू let's say दिया, I issued a check to दिया, let's say of 3,000 rupees. तो मैं क्या एंट्री मारेगा इधर? बाय दिया 3,000 on 31st December 22. और क्या ये चेक होगा सिर्फ मन में क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है। 3-4 दिन बाद वो बैंक में डालेगी, उसके बाद डिपॉजिट होगा। तो अब वापस बैलेंस अलग हो गया है। व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश? 25 minus 7. What is the balance as per cash? 18. What is the balance over here? 6. Is it same or different? Different. So that's what we are doing over here. Your starting point is cash book. You write here 18,000. Then you check कि अलग क्यों हुआ? तो एक तो चेक था कृषि वाला, कैश बुक गोज अप, पैसा आया, पासबुक में नहीं है, बैलेंस कम है, तो माइनस किया। दूसरा वाला दिया वाला चेक था, मैंने इश्यू किया है, पैसा आया कि गया? गया, तो कैश बुक गोज डाउन 1 lakh 96 हो गया, पासबुक इज मोर, तो कंपैरेटिव बैलेंस इज मोर, सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? ऐड, सो एरो मूव्स अपवर्ड, सो यू ऐड द 3,000. सो व्हाट इज दिस? 18 minus 15 3 3 plus 3 6. आ गया ना पासबुक का? That's what we are doing in the problem. We are not making any changes in the balance. The balance are there at the end of the month. We are just comparing कि कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक ज्यादा है कि कम। कैश बुक अगर ज्यादा है, पासबुक कम है, तो आप माइनस कर देते हो। कैश बुक अगर कम है, पासबुक अगर ज्यादा है, तो आप ऐड कर देते हो। ऑटोमेटिकली आपको दूसरा बैलेंस मिल जाता है। सम्स में आपको दूसरा बैलेंस नहीं देंगे, तो यू शुड बी डेड श्योर, 110% श्योर व्हाट आर यू सपोज टू ऐड एंड व्हाट आर यू सपोज टू सबट्रैक्ट। दैट इज द की ऑफ बीआरएस। इज इट क्लियर? क्या प्लस करना है और क्या ये समझ में आ गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसके बेसिस पे हमने एरोस भी किए थे, अपने होमवर्क भी किया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक में स्टेट हो गया पूरा सम में, तो मेरा पूरा सम ना 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 ऐसा नहीं होता। वो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा है। आपको इंडिविजुअल रॉन्ग है तो ये रॉन्ग जाएगा, फाइनल आंसर रॉन्ग जाएगा। बाकी सब जो राइट है प्लस माइनस उसके मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स जाएंगे आपके, 10 में से 8 तो मिलेंगे, एक मिस्टेक। ओके, सो कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में। व्हाट इज बीआरएस ऑल ऑफ यू? लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस, लिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ओके,
What was the last sum? I think last sum was 22. Last का correct? Yes or no? कास्टिंग एरर्स याद है आपको? मैंने डिस्कस किया था कास्टिंग एरर्स। 8 प्रकार के कास्टिंग एरर्स है। कास्टिंग एरर टैकल कैसे करना है? यू जस्ट कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और पेमेंट। रिसीट ज्यादा बताया, रिसीट ज्यादा बताया, बैलेंस गोस, रिसीट कम, पेमेंट ज्यादा, खर्चा ज्यादा, बैलेंस गोस डाउन, पेमेंट्स कम। Is that right? That is casting errors. कोई भी बुक हो, कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और पेमेंट और पैसे का लॉजिक लगाओ। भले गलती से हुआ लेकिन हुआ, अच्छा गलती हुई है, लुक एट इट एज इट इज, डोंट ट्राई टू नाउ। अब तक हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स करते आ रहे थे ना, वो नॉर्मल बैलेंस के थ्रू करते आ रहे थे। कैसे करते आ रहे थे? नॉर्मल। अभी हम लोग करेंगे ओवरड्राफ्ट। क्या सीखेंगे? ओवरड्राफ्ट। अभी ओवरड्राफ्ट का लॉजिक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। सी सपोज दोनों बुक्स है, दिस इज माई कैश बुक, दिस इज माई पासबुक। फोकस ऑल ऑफ एस्पेक्ट्स। दिस इज माई कैश बुक, दिस इज माई कैश बुक, पासबुक। दोनों में नॉर्मल है। सपोज 1 लाख 1 लाख नॉर्मल। आई गॉट अ चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड। कौन से बुक में एंट्री आया? कैश। पहले कैश बुक में, कैश बुक गोज अप 10,000 and it did not get clear, so passbook remains flat. So what am I supposed to do? That's simple. That you have done. Now let's assume दोनों बुक में नॉर्मल बैलेंस की जगह ओडी चल रहा है। ओडी मतलब उधार, उधार मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। कैश बुक में भी 1 लाख का ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में भी 1 लाख का ओवरड्राफ्ट है। इट्स नॉट नॉर्मल बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं, ओडी है। ओडी मतलब ज्यादा पैसा निकाल लिया बैंक से। दोनों में नेगेटिव बैलेंस है 1 लाख का। अब इमेजिन करो 10,000 का चेक आया, डिपॉजिट किया, तो अगर ओवरड्राफ्ट है, उधार है, उधार में अगर पैसा आता है, आप पैसे डालते हो बैंक में, उधार के वक्त अगर आप पैसे बैंक में डालते हो तो उधार बढ़ेगा कि कम? पक्का? आपका ओडी चल रहा है 1 लाख का और आपने पैसे डाले बैंक में, तो उधार बराबर। तो 1 लाख से ओडी हो जाएगा 9। Now, if I am comparing OD of cash book and OD of passbook, so can I say overdraft of passbook is more than the overdraft of cash book by 10,000? I am supposed to. But यही नॉर्मल था। नॉर्मल अगर दोनों था, बैंक बैलेंस था और चेक आता, तो ये ऊपर चला जाता और आप माइनस करते। बट ओडी में आप क्या कर रहे हो? ओडी नीचे चला गया तो आप ऐड करते हो। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट। नॉर्मल बैलेंस में जो आप प्लस कर रहे हो, ओडी में आप, और नॉर्मल में जो आप माइनस कर रहे हो, ओडी में आप प्लस कर रहे हो। ठीक है, अनदर एग्जांपल। दोनों का नॉर्मल बैलेंस था 1 लाख 1 लाख, दोनों का नॉर्मल बैलेंस था 1 लाख 1 लाख, राइट। कैश बुक से पैसा गया, इश्यू किया है आपने चेक 20,000 का, 20,000 का चेक आपने इश्यू किया है, कैश बुक से पैसा गया, तो दिस हैज बिकम 80,000। अग्री? गया ना? अरे नॉर्मल बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो 1 लाख का 80 हो गया ना, पैसा गया। दिस इज 80, दिस इज 1 लाख। आई एम सपोज टू हैव, दिस इज नॉर्मल बैंक बैलेंस। नॉर्मल था, पैसा गया, कम हो गया, ये 80 हो गया, यहां से नहीं गया, ये 1 लाख है, तो ऐड करूंगा टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। अभी ओवरड्राफ्ट, दोनों में 1 लाख का उधार चल रहा है, दोनों में 1 लाख का उधार चल रहा है। उधार में भी आपने एक और चेक फाड़ के दे दिया, नेगेटिव बैलेंस था और पैसे निकाल के दे रहे हो, उधार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक में 1 लाख 20 है, व्हाट इज द ओडीएस फॉर पासबुक? स्टिल 1 लाख, सो आई एम सपोज्ड टू subtract। अग्री? सो वहां पर भी मैंने क्या किया, जहां पे नॉर्मल बैलेंस में आई वाज सपोज्ड टू ऐड, ओवरड्राफ्ट है, आई एम डूइंग उल्टा, आई एम सब्ट्रैक्टिंग। इज दैट क्लियर? सो कोर क्या है, कंसेप्ट क्या है? जहां नॉर्मल बैलेंस बढ़ता है, ओडी घटता है, कम होता है, एंड जहां नॉर्मल बैलेंस कम होता है, ओडी बढ़ता है। कॉमन सेंस है। नॉर्मल बैलेंस में और पैसे आते हैं तो नॉर्मल बैलेंस बढ़ेगा, उधार में और पैसे आते हैं तो उधार घटेगा, कम हो जाएगा। एंड
वाइस वर्सा, जब नॉर्मल से पैसा जाता है तब नॉर्मल घटता है, बट उधार में और पैसा जाता है तो उधार बढ़ता है कि नहीं? समझा? सो पूरा सम जब आप करोगे ना तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ये तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट को याद रखना ही है, कंसेप्ट के बिना काम नहीं होने वाला। कंसेप्ट समझ में आया? नॉर्मल में पैसा आता है तो नॉर्मल बढ़ता है, उधार में और पैसा आता है तो उधार घटता है। नॉर्मल से पैसा जाता है तो नॉर्मल घटेगा, उधार से पैसा जाएगा तो उधार बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी डू द ऑपोजिट स्टफ। बट ये सब नॉर्मल और उधार आप पूरा चक्र भी उल्टा सोचने बैठोगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप पूरा सब नॉर्मल तरीके से करोगे, जस्ट लाइक यू डू इट नॉर्मल। जैसे नॉर्मल से करोगे पूरा सब कुछ नॉर्मल से करो, फिर लास्ट में क्या करो, आप साइन को चेंज करो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का उधर काम हो गया आपका। तो उधर में आपका एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है थोड़ा, इसके और कुछ नहीं। ओके, बाकी कंसेप्चुअली दिमाग में कोर तो याद रखना ही है, काय को ये हो रहा है। ओके, नाउ सी along with the problem I'll explain how to tackle this. All of you take some number 18, page 73. Sum number 18. 18 sum, page 73. देखो ध्यान से. The cash book showed an overdraft of 45,000. मिला आपको? Cash book showed an overdraft of 45. तो अब तक आप लोग क्या देखते थे? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. अभी आपको क्या दिख रहा है? ओवरड्राफ्ट. दिख रहा है? वो हिंट दिया होगा ऊपर लिख देने का, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, दैट इज 45. Am I right? Bank overdraft as per cash book is 45. Hela? So I am moving from cash book to passbook this time, but with overdraft. I am moving from cash book to passbook this time, but with overdraft. Is that right? वही करना है, CB to BB overdraft. खाली ओडी लिखा हुआ है, ठीक है? गम्मत देखो. Payment side of cash book was undercast by 1500. You know how to tackle casting error, convert the sides into receipt and payment. Payment तो दिया हुआ ही है, payment side of cash book दिया हुआ ही है. Was undercast मतलब पेमेंट ज्यादा बताया कि कम?